So thermodynamics is a very old field. It is the study of thermal reaction to matter. यहाँ पे जो हम मटेरियल स्टडी करेंगे इट विल एक्सक्लूसिवली बी गैसेस, और हम जो गैसेस स्टडी करेंगे दे विल बी आइडियल गैसेस. आइडियल गैसेस का अगर आप एग्जांपल देखोगे, this is an example of ideal gas. So I have one particular gas and these gases are moving. Okay, yeah. So these gases are behaving ideally. Ideally का मतलब है कि इन जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है. सो दे कैन नॉट क्लम्प टुगेदर. ओके, कोई फोर्सेस नहीं है. यूजुअली क्या होता है, हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं जिसके वजह से ना वो चिपक जाते हैं एक दूसरे से और उनका फेस चेंज हो जाता है. सो दीज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस चेंज द बिहेवियर ऑफ दिस गैस. यहाँ पे ना दीज मॉलिक्यूल्स आर बिहेविंग लाइक बिलियर्ड बॉल्स. ओके, दैट्स द आइडिया. दिस इज आइडियल गैस और इनकी थर्मल प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करेंगे. देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट पैटर्न्स दैट यू विल सी. जैसे if I have two gases, on an average you will see that the smaller particles are moving faster than the bigger particles. We will see the reasons for all of this. Before, when thermodynamics was discovered, people did not know that matter is made up of atoms. So they wrote down all these theories, the terms like heat, work, energy, etc. without knowing all this. Later on, when we discovered that matter is made up of atoms, the mechanics of atoms leads to thermodynamic properties. So thermodynamic properties are nothing but the mechanics of atoms. It is not very different from mechanics, but the basic difference is the number of particles is of the order 10 raised to 23. So there is no possible way we can analyze in detail the mechanics of every single particle, but we can do an averaging. So the basic concepts that we will define, the first concept we will define is pressure, then temperature, then volume. Volume is pretty easy to define. Volume is the volume occupied these gas particles. We will define what the temperature is next. First let us define what pressure is. What is the definition of pressure in this case? If I have a gas, what is the meaning of pressure? The force applied on this wall. So I can take this particular wall and calculate the total force that the gas applies. Yeah. So you can see that if I increase the number of particles, the pressure will also increase because the rate of collisions have increased. More particles, more collision. So let us write down the formula for pressure now. This is the first formula that we will write down. So this is called kinetic theory of gases. So macroscopic properties of thermodynamics emerge from microscopic collisions. That's the idea. So let us analyze the force on this particular wall. This particular wall has an area A. The net force, the net pressure on this particular wall. So we will start with one collision. When a molecule collides with this particular wall, it is reflected in this particular direction. The x component of velocity of this molecule is Vx. So what is the force that the molecule applies on this wall? So for that, let us calculate what is the change in momentum of this molecule. When a molecule collides with a wall, what is its change in momentum? So only the x component of momentum changes. The initial x component of velocity is Vx, finally it is minus Vx. So change in momentum is two. Okay, final momentum is this is final momentum minus mvx, initial momentum is mvx. So change is final minus initial, so that is minus mvx, so minus 2 mvx. The change in momentum of molecule per collision, in one collision, this is the change in momentum of molecule. So change in momentum transferred to the wall per molecule is this Newton's third law. Momentum received is momentum given. The wall is applying force on the molecule is applying equal and opposite force on the wall. So this is the change in momentum of the wall. Momentum transferred in one collision. Now let us refine it more.
Suppose these are the walls. This molecule, the x component of its velocity is vx. After first collision, the molecule will travel back and again it will come and collide. How much time does it take for the molecule to travel and hit it back again? 2L by V. Distance traveled upon speed, which is time taken. Distance upon speed is time. This is time interval between two collisions. Okay, time period of one collision, like time taken between two collisions, time period of collision. So what is number of collisions per second? Inverse of this. This is called frequency, the collision frequency. Think of it like this. If a molecule takes half a second to collide, then how many collisions in 1 second? 2 collisions. So inverse of this. This is time period. Okay. अगर मॉलिक्यूल को यहाँ से यहाँ तक कोलाइड करने में हाफ सेकेंड लग रहा है, इसका मतलब 1 सेकेंड में 2 कोलिजन हो जाएंगे मॉलिक्यूल के. उसे बोलते हैं कोलिजन की फ्रीक्वेंसी. इनवर्स ऑफ दिस, तो ये हो गया आपके कोलिजन की फ्रीक्वेंसी. सो नाउ लेट अस कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड. फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम. देखो फोर्स का मीनिंग क्या होता है? मोमेंटम ट्रांसफर्ड इन 1 सेकेंड. momentum transferred in 1 second per unit time, which is momentum transferred in one collision into number of collisions in 1 second. Did you understand? Momentum transferred in 1 second is momentum transferred in one collision into number of collisions in 1 second. If two momentum is transferred in one collision and 10 collisions per second हो रहे हैं, तो 20 हो गया ना टोटल. 1 सेकेंड में 20 मोमेंटम ट्रांसफर होगा. So force is basically the momentum transferred into number of collisions per second, which is collision frequency. So when we multiply this, we have a formula like this, Vx square. Now there is nothing special about x. X, y, z, all directions are equivalent. So we can say what v square is vx square plus vy square plus vz square. This is the very definition of v square. Vx square, the meaning of vx square is the square of x component of velocity, whereas v is actually the speed. ये उसका बस x component है vx. तो यहाँ पे हम लोग vx, vy, vz on an average सब same होते हैं, because molecule की velocity equally distributed होती है. So we can say vx square is v square by 3. तो हम लोग x को जनरलाइज करके v square by 3 के टर्म में लिख सकते हैं. तो ये हमारे फोर्स का इक्वेशन हो गया. ये एक मॉलिक्यूल का फोर्स है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल का फोर्स. ऐसे ही बहुत सारे इसका प्रेशर निकाल लेते हैं पहले. सो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ पे एरिया से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा लेंथ इंटू एरिया. ये एरिया है, एरिया इंटू दिस लेंथ क्या हो जाता है? वॉल्यूम. तो ये आपका फॉर्मूला इस तरह से आ जाएगा. यहाँ पे ध्यान देना है, ऊपर वेलोसिटी है, नीचे वॉल्यूम है, इसलिए इसमें स्लैश कर दिया. ये एक मॉलिक्यूल का प्रेशर है. ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो रहे हैं, तो सबका प्रेशर ऐड करना पड़ेगा. सो हमारा जो टोटल प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ 1/3 m वॉल्यूम. यहाँ पे आ जाएगा आपका v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर. हर मॉलिक्यूल की ना स्पीड अलग अलग होती है. कुछ मॉलिक्यूल स्लो मूव कर रहे हैं, कुछ फास्ट मूव कर रहे हैं, हर एक की स्पीड ना अलग अलग होती है. तो ये आपके प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा इस तरह से. समझ में आ रहा है? अब आपने कभी RMS सुना है? RMS सुना है? रूट मीन स्क्वायर होता है. देखो कैसे डिफाइन करते हैं. अगर मेरे पास कुछ नंबर है -1 1 4 -4, इनका एवरेज क्या होगा? 0, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एवरेज 0 हो जाएगा. तो एवरेज ना
इस नंबर्स के बारे में कुछ बताता नहीं है क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव है। तो इस तरह का अगर इनका एवरेज लेना है ना, हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं आरएमएस। पहले हम इनको स्क्वायर करते हैं तो ना इनसे वो नेगेटिव वाला पार्ट चला जाता है। फिर हम इनका मीन लेते हैं स्क्वायर करने के बाद। फिर क्योंकि हमने स्क्वायर किया था, हम इनका स्क्वायर रूट लेते हैं। इसे बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर और आरएमएस। आरएमएस पहले क्या करो, स्क्वायर लो, फिर मीन लो, फिर रूट लो, क्योंकि आपने स्क्वायर लिया था इनका, आरएमएस बोलते हैं। तो इसी तरह हम स्पीड का भी आरएमएस ले सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये रूम में जो गैसेस हैं उनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है, क्या होगी एवरेज वेलोसिटी? ये रूम में जितनी गैसेस हैं उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या है? क्या लग रहा है आपको, क्या होगी? ज़ीरो, क्योंकि सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, वेक्टर होता है वेलोसिटी, सब एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो। अब मैं बोलूँ ये रूम में एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो है, कुछ कन्वे करता है मीनिंग? नो। रूम ठंडा हो गया, एसी चल रहा है बहुत टाइम से, रूम ठंडा हो गया, एवरेज वेलोसिटी फिर भी ज़ीरो, तो कुछ पता नहीं चलता ना रूम गर्म है ठंडा है, एवरेज वेलोसिटी। तो आरएमएस वेलोसिटी, आरएमएस यूज़ करते हैं हम लोग, आरएमएस। हाँ, और स्क्वायर करते हैं उसका, या ओके। तो ये ना नेचुरली आता है। तो हम लोग आरएमएस यहाँ पे कैसे इंक्लूड करेंगे? अगर आप ये फॉर्मूला देखोगे, ये गैस का प्रेशर है, सम करना है, समेशन ओवर वी, वी के ऊपर समेशन हो रहा है। हमने क्या किया, एन से मल्टीप्लाई किया, एन से डिवाइड किया, एन को ऊपर ले लेंगे, फिर ये वी स्क्वायर बाय एन हो जाएगा। ये क्या है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर। बेसिकली इसको n से डिवाइड कर दिया और ऊपर भी n से डिवाइड कर लिया। ये मीन हो गया, एक तरह से स्क्वायर का मीन हो गया। ओके, तो ये मीन स्क्वायर का मीन हो गया, मीन स्क्वायर हो गया। ये समझ में आ गया? इसको हम लोग वी आर एम एस स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो वी आर एम एस का मीनिंग क्या होता है, पहले स्क्वायर करो एटसेट्रा, फिर मीन लो, फिर रूट लो। हम लोग लास्ट में अगर रूट मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं तो ये वी आर एम एस स्क्वायर हो जाएगा ना, ऐसे। तो ये हो गया आपका वी आर एम एस स्क्वायर। सो ये है प्रेशर का फॉर्मूला। अब यू कैन गो ओवर दिस डेरिवेशन अगेन। मैं आपको फाइनल रिजल्ट बता देता हूँ कैसे याद रखना है। ये बस एक बार आपने देख लिया ना डेरिवेशन, जस्ट गो ओवर इट अगेन लेटर ऑन। मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ। देखो, जस्ट यूजिंग मैकेनिक्स, बेसिक काइनामेटिक्स, बेसिक डायनामिक्स, हमने ना फॉर्मूला डिराइव किया प्रेशर का। वो फॉर्मूला क्या है, द प्रेशर अप्लाइड बाय अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट ऑल। अगर मॉलिक्यूल का मास ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़ोर से हिट करेगी वॉल को, ज़्यादा मोमेंटम ट्रांसफर होगा। सो प्रेशर शुड बी प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द मॉलिक्यूल। इसका मतलब होता है द पार्टिकल का मास, द मॉलिक्यूलर मास, और अगर एटम है तो एटम का जो मास है आपका, प्रोपोर्शनल टू दैट। अगर बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हैं तो ज़्यादा कोलिजन होगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा वॉल पे, तो इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू एन ऑल्सो। ये एक वॉल है आपकी। अगर हैवी मॉलिक्यूल्स है, जोर मतलब ज़्यादा मोमेंटम ट्रांसफ़र करेंगे ना, मास ज़्यादा हैवी है ना, एन अगर ज़्यादा है। अब अगर मॉलिक्यूल की स्पीड ज़्यादा है तो भी मोमेंटम ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा। सो ऊपर वी आर एम एस भी आएगा और उसका स्क्वायर आता है। नेक्स्ट, अगर आपका ये जो रूम है इसकी वॉल्यूम अगर कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। वॉल्यूम डिक्रीज होने से प्रेशर इंक्रीज क्यों हो जाता है? वॉल्यूम कम होने से। वॉल्यूम कम होने से प्रेशर इंक्रीज क्यों हो जाता है? कैन यू गेस? प्रेशर या वॉल्यूम कम होने से गैस का प्रेशर क्यों इंक्रीज हो जाता है? एरिया नहीं, एरिया से फर्क नहीं, वॉल्यूम कम हो गया है
तो क्या हो गया है, एक पार्टिकल, अगर गैस का एक पार्टिकल लो, वो यहाँ पे आके कोलाइड करके वापस जाएगा, उसको अगर 1 सेकेंड लग रहा है, अगर डिस्टेंस कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, एक बॉक्स अगर छोटा है, तो सेम पार्टिकल को हो सकता है 1/4 ऑफ अ सेकेंड लगे वापस जाने में। तो रेट ऑफ कोलिजन बढ़ जाता है, उनकी स्पीड उतनी है, मास भी उतना है, वॉल्यूम कम होने से क्या होता है, जल्दी जल्दी टकराएगा, वो रेट ऑफ कोलिजन बढ़ जाता है, सो वॉल्यूम नीचे आता है। और एक और फैक्टर आता है 3 का, जो डिनोमिनेटर में होता है। तो ऐसे आपको प्रेशर का फॉर्मूला याद रखना है, प्रेशर ऑफ अ गैस।